Hello, Cancer people. Welcome to my reading. It's a reading about your personal growth based on positive affirmation, manifestation, and angelic guidance from the universe. So, let me tell you, it's a bi monthly reading from 15th of September to 30th of September. You can watch it as a Cancer sun sign, Cancer moon sign, and Cancer rising or ascendant sign. All these signs would validate. Okay, so let's start with your reading, Cancer people. I'll pick up two manifestation cards from this deck, then I'll move on to the other deck. I smiled because these two cards are having a same meaning. I'll come to it later on. Now I'll be picking up two cards from this deck of positive affirmation. Okay. Viewers, please guide the Cancerians. Please guide the Cancer people through the positive affirmations, through the manifestations. What changes do they need to bring in their life in order to better their life? Please guide them. Okay, Cancer people. The first manifestation card says, jump for joy. First, let me tell you what is manifestation. Manifestation is what we bring into reality. Our thoughts, our desires, our dreams becoming into reality or fulfilling it into reality. अपने थॉट्स को, अपने डिज़ायर्स को, ड्रीम्स को जब हम लोग फुलफिल करते हैं, रियलिटी में लाते हैं, इसी को हम लोग मैनिफेस्टेशन कहते हैं. मेरे यूट्यूब चैनल पे मैनिफेस्टेशन के ऊपर, पॉजिटिव एफर्मेशन के ऊपर डिटेल्स वीडियो है. आप प्लीज़ उसे रेफ़र करें. आपको इससे बहुत नॉलेज मिलेगा, हेल्प मिलेगा अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और सुधार लाने के लिए. So please refer to those videos in my YouTube channel on positive affirmation and on manifestation. Okay, so the first card of manifestation says, jump for joy. Okay, jump for joy. You can lift your frequency, accelerate manifestation, and change your whole life with this powerful visualization technique that can be done in less than 30 seconds. काम तो इतना आसान है, लेकिन हर किसी से नहीं हो पाता है. Imagine that you just received your desire and see yourself jumping for joy. Jump for joy in the sense, see, we can all change our thoughts, thoughts ही सब कुछ है हम लोग के जीवन में. हम लोग के जीवन का जो मैनिफेस्टेशन होता है, जो लोग नेगेटिव सोचते हैं उनके लाइफ में नेगेटिव मैनिफेस्टेशन होता है, जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं उनके लाइफ में पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होता है. इट इज़ दैट सिंपल. द यूनिवर्सल लॉ इज़ वेरी सिंपल. हम लोग उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं या फिर हम लोग को उस नॉलेज ही नहीं है इस बारे में. इसीलिए फॉर योर नॉलेज I am doing this reading so that you can gain some knowledge from this कि कैसे चलता है यूनिवर्स. आप में से किसी को पता होगा, किसी को नहीं भी पता होगा.
जो जिनको पता नहीं है कि कैसे मैनिफेस्टेशन होता है, पॉजिटिव एफर्मेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, आप प्लीज़ ये रीडिंग से जानिए और अपने आप को चेंज कीजिए फॉर द गुड, और अपने लाइफ को भी और बेहतर बनाइए और उम्दा बनाइए. So jump for joy. You can lift your frequencies, accelerate manifestation, and change your whole life with this powerful visualization technique that can be done in less than 30 seconds. Visualize कीजिए, सोचिए, जो आप चाहते हैं अपने ज़िंदगी में हासिल करना, ऑब्वियसली फॉर द गुड, किसी का नुकसान करके नहीं, अपने लिए जो चाहते हैं, अपने खुशी के लिए जो चाहते हैं, या जॉब हो सकता है, लव लाइफ हो सकता है, कुछ कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी सिचुएशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसे अपने थॉट में क्रिएट कीजिए, पहले बिल्ड अप कीजिए, डेवलप कीजिए उस टाइप का थॉट, उसे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए, अपना फ्रीक्वेंसी लेवल को और हाई कीजिए, लिफ्ट अप कीजिए, क्योंकि जैसा थॉट होगा वैसा आपका फ्रीक्वेंसी होगा, वैसा आपका एनर्जी होगा. नेगेटिव थॉट्स क्या करता है, हम लोग को बहुत इमोशनली, मेंटली ड्रेन कर देता है, और पॉजिटिव थॉट ठीक उल्टा करता है, आपको लिफ्ट अप करेगा, आपके फ्रीक्वेंसी को लिफ्ट अप करेगा, बूस्ट करेगा आपके एनर्जी को, और इससे मैनिफेस्टेशन भी एक्सेलरेट होगा. So you can lift your frequency, accelerate manifestation and change your whole life with this powerful visualization. जो आप चाहते हैं उसे इमेजिन कीजिए, पिक्चराइज कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, तब ये और पावरफुली फिर आपके थॉट में बैठेगा, आपके दिमाग में बैठेगा, और उससे मैनिफेस्टेशन और आसानी से होगा. यूनिवर्स तक तब और क्लियर मैसेज पहुंचेगा, तभी तो यूनिवर्स आपको हेल्प कर पाएंगे, है ना. With this powerful visualization technique that can be done in less than 30 seconds. 30 सेकेंड के लिए, सिर्फ 30 सेकेंड के लिए इसे इमेजिन कीजिए, पिक्चराइज कीजिए, विजुअलाइज कीजिए. विजुअलाइज करना मतलब पिक्चराइज करना, अपने सोच में, अपने दिमाग में. इमेजिन दैट यू जस्ट रिसीव्ड योर डिज़ायर. आपका जो डिज़ायर आप चाहते थे फुलफिल हो, इसे सोचिए कि ये वैसे फुलफिल हो चुका. यू हैव जस्ट रिसीव्ड योर डिज़ायर and see yourself jumping for joy. Obviously खुशी डेफिनेटली मिलेगी. अगर हम लोग कोई चीज़ चाहते हैं फुलफ़िल करना, वो अगर फुलफ़िल हो जाए तो खुशी तो मिलेगी, ये तो जाहिर सी बात है ना. तो ऐसे सोचिए, ऐसे विजुअलाइज कीजिए, एंड देन सी द जॉय यू गेट आउट ऑफ दिस, और तभी जाके धीरे धीरे आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा. The second card says, choose happiness now. Choose happiness now. Resistance blocks your desires from coming to you. Resist मत कीजिए किसी चीज़ को, क्योंकि रेजिस्ट करेंगे तो ये ब्लॉकेज क्रिएट करेगा आपके सोच के अंदर, आपके जीवन के अंदर, आपके पूरे विचार के अंदर. होल लाइफ में ये ब्लॉकेज जैसा क्रिएट हो जाएगा. सो डोंट रेजिस्ट. Let it flow smoothly. Let it flow evenly. Resistance blocks your desires from coming to you. ये फिर आपका डिज़ायर फुलफिल करने नहीं देगा अगर आप रेजिस्ट करोगे. You create resistance in yourself by feeling anxious or worried about receiving what you want. Resistance कैसे क्रिएट होता है? डर से, एंग्जाइटी से, वरी से, दुश्चिंता से, चिंता से, इन सब चीज़ों से रेजिस्टेंस क्रिएट होता है. और ये अल्टीमेटली क्या करता है, आपके वो डिज़ायर को फुलफ़िल होने में ब्लॉक कर देता है, एक बैरियर सा क्रिएट कर देता है, जिसके आगे आप नहीं जा सकते. आपका डिज़ायर फुलफ़िल नहीं हो पाता है इसलिए, इस वजह से. So don't resist.
Otherwise, it will create blocks in your life. It will block your desire. You will melt away those negative feelings that are causing resistance and blocking delivery when you find a way to feel happy now before receiving your desire. इसीलिए happiness के बारे में बोला गया है, choose your happiness. Choose your happiness now. सैड होके मत रहिए, डिप्रेस्ड होके मत रहिए, अपना नेगेटिव सोच, नेगेटिव थॉट पैटर्न को बदलिए, पॉजिटिविटी में बदलिए, अपने अंदर के ऊर्जा को, एनर्जी को पॉजिटिव में फॉर्म कीजिए, नेगेटिव विक्टिम मेंटालिटी से अपने आप को हटाइए, अपने अंदर खुशी पैदा कीजिए. कैसे करेंगे? जो आपको अच्छा लगता है, आप बेहतर जानते हैं किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है. ऑब्वियसली वो सही दिशा में होना चाहिए. इट शुड बी इन द राइट डायरेक्शन, राइट थिंग. किसी और का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए इसमें, ये हमेशा याद रखिएगा. सो ऐसा करने से क्या होगा? हैप्पीनेस अगर आप बिल्ड करोगे अपने अंदर, तो इससे क्या होगा? आपके अंदर जो नेगेटिव फीलिंग्स है, नेगेटिव थॉट्स है, वो मेल्ट अवे हो जाएंगे. वो मेल्ट हो जाएंगे ग्रेजुअली. इट विल इवेड. इरेजर से कैसे हम लोग इरेज करते हैं रबर से, वैसे इरेज हो जाएगा, मिट जाएगा, डिलीट हो जाएगा धीरे धीरे. एक दिन में ऑब्वियसली नहीं होगा. आप प्रैक्टिस करोगे तभी ये पॉसिबल होगा. धीरे धीरे आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा. So you will melt away those negative feelings that are causing resistance and blocking delivery when you find a way to feel happy now before receiving your desire. ऐसा करने से आप क्या करोगे? जो डिज़ायर आने में जो चीज़ ब्लॉक कर रहा है, जो रेजिस्टेंस आप क्रिएट कर रहे हैं, वो रेजिस्टेंस को आप इरेज कर दोगे ग्रेजुअली थ्रू योर हैप्पीनेस. Through your happiness or happy thoughts or happy feelings. Be happy, feel happy. The main message is this: be happy and feel happy. That is how you can remove your resistance. You can remove the blockage that is obstructing your desire to be fulfilled in your life. Moving on to the card of positive affirmation. My presence is magnetic. से दिस टू योर सेल्फ. पॉजिटिव एफर्मेशन जो हम लोग खुद मन ही मन में बोलते हैं, या फिर लिखिए, डायरी मेंटेन कीजिए. राइटिंग इज़ वेरी पावरफुल. इसको डेली बेसिस पे लिखिए, डेली बेसिस पे चर्न कीजिए, अपने अंदर बोलिए. कॉन्शियस से सब कॉन्शियस माइंड में तब जाएगा ये, तब जाके धीरे धीरे और डीपर लेवल पे बैठेगा, एंड तभी मैनिफेस्टेशन पॉसिबल होगा. क्योंकि यूनिवर्स के पास तभी मैसेज पहुंचेगा, तब जाके आपका मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगा, रियलिटी में आएगा. सो ये बोलिए अपने आप को, माई प्रेजेंस इज़ मैग्नेटिक. मैं जो जो पॉइंट्स बोल रही हूँ, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू राइट इट डाउन इन योर डायरी एंड मेंटेन इट, you know, on a regular basis. Keep on saying this to yourself. Keep on writing on a daily basis. My presence is magnetic. Second card of positive affirmation. My aura is so divine and pure. My aura in the sense energy. जो एनर्जी हम लोगों में होती है, उसका रेज बनता है, उसका कुछ फ्रिक्वेंसीज होते हैं, उसके रेज बनते हैं. तो उसी रेज को हम लोग ऑरा कहते हैं. हर एक रेज का, ऑरा का अलग अलग कलर होता है. जिसका जैसा थॉट है उसका वैसा एनर्जी है, उस एनर्जी का वैसा कलर है, वैसा ऑरा है. नेगेटिव थॉट्स का बहुत डार्क कलर्ड ऑरा होता है, पॉजिटिव थॉट्स का बहुत लाइट कलर्ड ऑरा होता है, और वो बहुत हल्का होता है. एंजल्स के बारे में सोचिए, कैसे उनके इर्द गिर्द चारों तरफ वाइट लाइट रहता है. It's not a dark energy. It's the lightest and purest form and the most divine form of energy they have. आप भी ऐसा कर सकते हैं.
पा सकते हैं अगर अपने आप को चेंज करें ऐसे ये सब तौर तरीके से। से दिस टू योर सेल्फ, माई ऑरा इज़ सो डिवाइन एंड प्योर। यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, अपने डिवाइन सेल्फ जो आपके अंदर है, आपका इनर सेल्फ जो आपको गाइड करता है। लेकिन हम लोग कभी कभी सुनते नहीं है, क्योंकि हम लोगों में ईगो इतना बसता है, ईगो की बात ही हम लोग सुनते हैं और तब जाके नुकसान होता है। तो इसीलिए ईगो को हटाइए, इनर गाइडेंस को फॉलो कीजिए, इनर वॉइस को सुनिए, अपने ऑरा को और बेहतर कीजिए, उम्दा कीजिए, पॉजिटिव कीजिए, वाइब्रेंट कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट होइए, अपने अंदर को अपने अंदर का जो स्पिरिचुअल पावर्स है उसको बढ़ाइए, जगाइए उसको, स्पिरिचुअल नॉलेज गैदर कीजिए और बोलिए माई ऑरा इज सो डिवाइन एंड प्योर। तब देखिए आपके जिंदगी में हैप्पीनेस, जॉय, डिविनिटी, प्योरिटी सब कुछ पा सकते हैं आप। कैंसर पीपल, you'll get everything that you desire. You have to be divine. In the sense you have to have those divine thoughts in your mind. Connect to the divine, to the super powerful universe. Isn't it? Now I'll move on to the angelic guidance section. Let's see what the universe has to say and guide you. Okay, I'll take this card since it has jumped out. It's a jumping card. Okay, it says your vibration is rising. Your vibration is rising. Can you see कैसे रिलेट कर रहा है? यहाँ पे यही कहा गया है। वाइब्रेशन क्या होता है? एनर्जी का जो फ्रिक्वेंसी होता है उसका वाइब्रेशन होता है हर एक एनर्जी का। जैसा एनर्जी होगा, जैसा थॉट होगा, वैसा एनर्जी होगा, वैसा वाइब्रेशन होगा। दिस इज़ हाउ इट गोज़, स्टेप बाय स्टेप। वैसा आपका ऑरा होगा, उस ऑरा का वैसा कलर होगा। जैसा थॉट होगा, दैट इज़ द सोर्स, दैट इज़ एवरीथिंग, that is you, that is your life. So your vibration is rising. Angels are guiding you this way. This is a time of great spiritual growth for you. मैंने अभी आपको बोला था यहाँ पे कि स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ाइए, ग्रो कीजिए स्पिरिचुअली, और यही पॉइंट आया है इस पे भी। देखिए, can you see how it relates? This is a time of great spiritual growth for you. You are evolving to occupy a higher energetic frequency. So much of a relation. Cancer people, please understand what universe and angels are trying to say and guide you. यहाँ पे भी फ्रिक्वेंसी एनर्जी की बात आई थी. दैट इज़ वॉट इज़ बीइंग सेड हियर ऑल्सो. यू आर इवॉल्विंग. यहाँ पे भी इवॉल्व होने की बात आई थी. माई ऑरा इज़ सो डिवाइन एंड प्योर. ऐसा करने से क्या होगा? आप इवॉल्व करेंगे. आपका स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ाइए, जानिए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानिए, डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, तभी आप अपना वाइब्रेशन रेज कर पाएंगे. और वाइब्रेशन अगर रेज किए तो लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपका थॉट पॉजिटिव है. यही मेन सोर्स है. दिमाग, थॉट, सोच.
So it's time for you to rise and grow spiritually, my dear Cancerians. That is what is being asked by the universe for you. That's the guidance universe wants to say and convey in the form of these messages. So your vibration is rising. हो सकता है कुछ कैंसेरियंस चल पड़े स्पिरिचुअल पाथ में, हो सकता है कुछ कैंसेरियंस अभी चलना शुरू करेंगे आगे, क्योंकि इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, इट्स अ जनरल रीडिंग. इट माइट नॉट रिलेट टू एवरी कैंसेरियन. कुछ का स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुका, कुछ का अभी होने वाला है, ऐसा डिफ़र कर सकता है फ्रॉम कैंसर टू कैंसर. So your vibration is rising. This is a time of great spiritual growth for you. You are evolving to occupy a higher energetic frequency. So my dear, raise your frequency, raise your vibration. Your vibration is rising. Have faith in yourself, have faith in universe and in the universal process, my dear. Your life will certainly change. अभी उसी गुडनेस के पाथ पे आपका लाइफ आगे बढ़ रहा है. सो ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए अपने ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर भी. सो आई होप यू लाइक्ड माई रीडिंग, कैंसेरियंस. यू एंजॉयड इट and certainly do the needful changes to make your life even beautiful. So wish you all the very best for your spiritual growth, for your spiritual knowledge, for your betterment in life, overall betterment. Hope to see you in my next reading. Till then, take care. Goodbye.